So, I am going to start the new chapter, which is called Force and uh, Law of Motion. Classes for class 9. Already, chemistry part has been completed. You can see the whole video from YouTube. And in physics part, already motion chapter has been completed. First of all, lots of definitions regarding distance, displacement was given, details about uniform and non-uniform motions, equations was given, and one numerical or one or two numerical was solved. You can practice more numerical, and now in the physics section, I'm going to start the next chapter from physics, second chapter from physics section. The name of the chapter again I repeat, Force and Law of Motion. So already a brief introduction regarding force was given in last lecture, that there are variety type of force, but in this regards, to explain Newton's law, we can classify forces two types. One is unbalanced force and other is what? Balanced force. Balanced force means resultant force is zero, means no action is there. Force is applied on a body. For example, a body is there, a force is applied from this direction, other force is applied from in this direction. So in this case, if both forces are equal but they exert from opposite direction, so the resultant force here will be what? Zero. Resultant force in this regards will be zero. So that's why it is called balanced force. So when force is balanced, they will not get any result or output of the force. But the same force, if same two force exert on same body in same direction, so it will get a maximum resultant here. So in this regards, the force, resultant force is not as equal to zero. So it is called unbalanced force. And in class 8, you got that we have lots of force. A classification was there like contact force and what? Non-contact force. In this regards, when we are called about contact force, means contact is needed. For example, friction force. Without contact, it will not work. And friction force always exert in opposite direction. And regarding non-contact force, we have lots of non-contact force. The applied force is also contact force. Magnetic force is non-contact. If two magnets kept at a distance, it will attract. And gravitational force, non-contact force, a body is thrown from the earth's surface, it will again come back because it is a non-contact force. Contact is not needed. Electrostatic force means when a two charge particle is kept at a distance, a force is there. So the force may be attractive, the force may be repulsive. So it is a non-contact force. So in this regards, regard the chapters, first of all we have to discuss about what? Newton's first law. Newton's first law. It's a theoretical law. So without unbalanced force, no object can change its position. No object can change its position. ये रेस्ट का बात नहीं है, मोशन सब स्टेट में आप पूरा इमेजिन करना है. जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी रेस्ट में है, उसको मोशन में लाना है, देन वी हैव टू अप्लाई फोर्स. सपोज ए बॉडी मोशन में है, उसको रेस्ट में लाना है, देन वी हैव टू अप्लाई फोर्स. सो रेस्ट में लाने के लिए फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है और मोशन में लाने के लिए फोर्स को सेम डायरेक्शन में लगाना है. सपोज ए बॉडी स्लो मोशन में मूव कर रहा है, सो उसको हम लोग और फास्ट करना है तो वी कैन अप्लाई फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन. एंड सपोज एक बॉडी बहुत स्पीड में मूव कर रहा है, सो उसको स्लो करना है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओ. तो बॉडी को स्लो करना, फास्ट करना, स्टॉप करना, मोशन में लाना, ऑल केस वी हैव टू अप्लाई व्हाट? फोर्स. एंड बॉडी को डायरेक्शन को चेंज करना है.
बॉडी को डायरेक्शन में बॉडी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फोर्स चाहिए। जैसे फोर्स अगर 90 डिग्री में लगता है तो बॉडी रोटेट करने लगता है। फोर्स अगर 90 डिग्री में लगता है तो बॉडी रोटेट करने लगता है। सब बचपन में जब हम लोग खेलते थे, जैसे मान लीजिए कोई दौड़ रहा है, सो अगर हम लोग 90 में थोड़ा पैर अगर आगे कर देते तो उससे लग के से घूम जाता था। तो फोर्स 90 में लगने से क्या होता है, बॉडी का सर्कुलर मोशन होता है। तो लिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन का भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, 11th क्लास में तो डिटेल्स पढ़ना है। सो इन केस ऑफ लिनियर मोशन व्हाट हैपेंस जनरली, द displacement, the direction of displacement and the direction of force is generally same. If direction is same, that is called 0 degree. And rotational motion or circular motion, what is the concept? The force must exert in perpendicular direction to the axis of rotation. rotation axis का 90 डिग्री में force लगता है सब body. So that case force is called actually torque. You will get details in class 11. So Newton first law is also called what? Law of what? Inertia. मैं फिर से और एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ that is very very important. For example, एक बॉडी मोशन में है, ऑलरेडी मोशन में है, उसका ऊपर अगर नेट फोर्स 0 है तो बॉडी का मोशन स्लो भी नहीं होगा, फास्ट भी नहीं होगा, यूनिफॉर्म मोशन में घूमता रहेगा। स्लो करने के लिए भी फोर्स चाहिए। एक्चुअली ये हम लोग का थोड़ा फीलिंग्स थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि ना कोई बॉडी अगर मोशन में है, अगर हम लोग उसका ऊपर फोर्स लगाना बंद कर देते तो द बॉडी विल अगेन कम इन रेस्ट पोजीशन। द रीजन इज दैट फ्रिक्शन फोर्स इज देयर। ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, अगर एक फैन घूम रहा है, फैन इज रोटेटिंग, सपोज इफ यू पुट ऑफ द स्विच, तो थोड़ा देर बाद फैन ऑफ बंद हो जाता है, स्लो का रुक जाता है। एक्चुअली तो वो जिस मोशन में था उसी मोशन में रहना था। द रीजन बिहाइंड द स्टॉपिंग इज एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस। इसका वजह से रुकता है, जिसको हम लोग पूरा 100% खत्म नहीं कर सकते। फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस का 100% खत्म कर तो फैन कभी भी नहीं रुकेगा, नो नेवर। सो लॉ ऑफ इनर्शिया मीन्स every body has a tendency that it never want to change its position. very very important. हर एक बॉडी का टेंडेंसी होता है कि अपना पोजीशन को चेंज करना नहीं चाहता है। बॉडी का टेंडेंसी है, यूनिवर्स का लॉ है। इसलिए मैं बोलता रहता बचपन से हैबिट सही होना है। एक बार हैबिट बन गया, वो हैबिट चेंज करना डिफिकल्ट होता है, चेंज करना चाहता भी नहीं है, क्योंकि हम लोग का माइंड में वो हैबिट हावी हो जाता है। माइंड बार बार, देखिए माइंड और बुद्धि में यही डिफरेंस है। बुद्धि आता है, इंटेलिजेंस आता है नॉलेज से, नॉलेज, एंड माइंड हावी होता है एक्सपीरियंस से। अगर बैड हैबिट का एक्सपीरियंस पर लग गया, माइंड वही बार बार चाहेगा। कभी कभी थोड़ा अब कॉन्शियस माइंड में अगर आदमी होता है तो इंटेलिजेंस ये बोलता है कि नहीं, ये सब हमको ठीक करना है, बट माइंड फिर बोलता है कि और एक बार ये एक्सपीरियंस चाहिए, और एक बार चाहिए, ऐसा करके और डीपली चला जाता है। सो आदमी, ह्यूमन का जो नेचर है उसको चेंज करना इसलिए डिफिकल्ट होता है। बचपन में चेंज करना आसान है, जैसे जैसे आदत डिप हो जाता है देन इट विल अप टू इम्पॉसिबल। क्योंकि लॉ भी कहता है, न्यूटन लॉ ऑल्सो टेल दैट, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑल्सो टेल अस दैट कोई भी बॉडी, कोई भी सिचुएशन चेंज होना नहीं चाहता है विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। इम्पॉसिबल नहीं है, आप फोर्स लगाना, एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जगह चेंज होगा। विदाउट फोर्स कोई भी बॉडी का पोजीशन चेंज करना नहीं चाहता है। सो नेक्स्ट इज न्यूटन सेकेंड लॉ। हियर वी हैव टू गो थ्रू मैथमेटिकली। सपोज वी हैव ए रेस्ट बॉडी, we have a body, no, not necessary to as a rest. Suppose a body is there, mass is m, having initial velocity u. So we want to change this initial velocity, then we have to apply force. बॉडी का वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमें फोर्स लगाना होगा। then it attain a velocity v, it is called final velocity। चेंज हो गई, u था v हो गया, चेंज हुआ किसका वजह से? द रीजन वी आर चेंजिंग इज फोर्स। ओके, सो इन दिस रिगार्ड्स
change of velocity is change of velocity is v minus u, and these changes take place suppose in t time. चेंज होने के लिए कितना टाइम लगा, t टाइम में कितना चेंज हुआ, v minus u. So in 1 second, change in 1 second कितना होगा, in 1 second v minus u by t. सपोज 100 पेन का दाम है, 10 पेन का दाम है 100 रुपीज, तो एक पेन का दाम कितना होगा, 100 by 10. टी टाइम में चेंज हुआ वेलोसिटी v माइनस u, एक सेकंड में कितना चेंज होगा, t से डिवाइड करना पड़ेगा. एंड यू नो इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, v माइनस u by t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. और चेंज ऑफ वेलोसिटी इन 1 second is called what, acceleration. It was given in last video. Okay, so but now here we have to know a little bit details. See, we can say here, first of all we can say this acceleration is directly proportional to what, force. acceleration होने का रीजन क्या है, acceleration होने का रीजन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. फोर्स का वैसे एक्सेलरेशन होना है, रीजन बिहाइंड चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट, फोर्स. बट हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स हम लोग एग्जैक्ट हर एक केस में वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है. द रीजन इज देयर, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. फॉर एग्जांपल ना, सपोज दो बॉडी है, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी u, एक बॉडी बड़ा है कैपिटल M, एक बॉडी स्मॉल है. दोनों में मैंने F फोर्स लगाया, सेम फोर्स लगाया, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो दोनों का फाइनल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो फोर्स इज सेम, पर इस केस में दोनों का फाइनल वेलोसिटी सेम नहीं होगा, क्योंकि एक बॉडी बड़ा है, एक बॉडी छोटा है. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज ओनली नॉट डिपेंड ऑन फोर्स. फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, नॉट ओनली डिपेंड ऑन फोर्स, इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन मास. इसको तो समझ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फोर्स का वैसे होता है, पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सिर्फ फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन मास. हल्का बॉडी को भगाने के लिए थोड़ा सा फोर्स लगाना है, हैवी बॉडी को भगाने के लिए बड़ा सा फोर्स चाहिए. इसलिए मैं बोलता रहता हूँ, जैसे जैसे हायर स्टडी में जाओगे एफर्ट भी ज्यादा लगाना होगा, आपको वर्क बढ़ता रहेगा, एफर्ट क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा. ओके, सो नाउ पूरा मिला के मैंने क्या लिखूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम क्यों, कि मास को भी साथ में लेके आए. वेलोसिटी कितना चेंज होगा सिर्फ फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, फोर्स का साथ साथ मास के ऊपर भी डिपेंड होगा. दैट्स व्हाई नाउ आई विल राइट द इनिशियल मोमेंटम इज mu, मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम इज mv. So change of momentum is mv minus mu. रेट t से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है. So we can write force directly proportional to rate of change of momentum, not rate of change of velocity. Rate of change of momentum. So mathematically and experimentally it is seen that the constant here, a case come, the value of constant is 1. Okay, so the formula become F is equal to mv minus mu by t. So for a particular body mass is constant, so we can take common the mass, so it become mv minus u by t. So this comes rate of change of velocity, which is called acceleration. So the formula become F is equal to ma, mass into acceleration. So Newton's second law, again I repeat, tells that rate of change of momentum directly proportional to what, force. and simplify करने से F is equal to क्या होगा, ma. So जब फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा,
इसका मतलब फोर्स का बिना किसी भी बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं होगा। इट मीन्स न्यूटन सेकेंड लॉ इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ। हम लोग बोलते रहते मोमेंटम आ गया, किसी स्टूडेंट, हम लोग टीचर्स से जब मीटिंग होता है ना, स्टूडेंट अच्छा मोमेंटम ले लिया, कोई स्टूडेंट का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, अच्छा मोमेंटम ले लिया, मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, वो पूरा ट्रैक में आ रहा है, एफर्ट लगाओगे तो वो मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम पढ़ाई में मोमेंटम चेंज हो रहा है। सो मोमेंटम, फिर से बहुत बार बार सेंटेंस को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है, फीलिंग्स आना ज़रूरी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। एनालिसिस करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैंने और डिटेल्स जैसे इम्पल्स वगैरह कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, तो यहाँ तक क्लियर करके रखो। न्यूटन थर्ड लॉ का भी बहुत सारा एनालिसिस होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एनालिसिस होगा, बहुत सारा रियल एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर।